Hello everyone, this is third lecture on surface chemistry, and in this video we are going to discuss colloidal solutions. As you know that in previous two videos we have discussed adsorption and catalysis. So if you have not watched those videos yet, please watch those videos. I am giving you a link in the description. Now, before understanding colloidal solutions, we have to understand these few points. One term is called dispersed phase and other is called dispersion medium. So whenever two or more substances are mixed, the substance which is dispersed in other substance is known as dispersed phase, while the substance in which the dispersed phase or one substance is dispersed is known as dispersion medium. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए कि डिस्पर्स फेज, जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर फॉर्म करते हो तो जिस सब्सटेंस को आप डिस्पर्स कर रहे हो, जिस सब्सटेंस को आप ऐड कर रहे हो उसको आप कहोगे डिस्पर्स फेज, और जिसमें ऐड कर रहे हो उसको आप कहोगे डिस्पर्जन मीडियम. नाउ देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर दैट वी फॉर्म. वन इज ट्रू सॉल्यूशन, अदर इज कॉल्ड colloidal solution, and one more that is called suspension. So what is the difference between these three? So you can see dispersed phase and dispersion medium, there are two type of substances. तो जैसे कि true solution जो आपने solution देखे हैं उसमें आपने देखा है there are two types of substances, one is called solute and one is called solvent. तो जैसे अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके लिए डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, सॉल्यूट जिसको आप डिस्पर्स करते हो, और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें आप ऐड करते हो, डिस्पर्स करते हो, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट. तो होप कि आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्लियर हो चुका होगा. जैसे सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे ही जनरल टर्म जो यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. तो कोई भी तीन तरीके के हमारे पास ये मिक्सचर होते हैं. पहला है ट्रू सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन में हमको जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं एंड द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर. तो ट्रू सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे, द साइज ऑफ डिस्पर्स फेज particles will be less than 10 angstrom. Now, in case of colloidal solution, it is about 10 to 1000 angstrom, or you can say 1 to 100 nanometer. तो particles का size colloidal solution में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, while in case of suspension, the size of the particles of dispersed phase that is greater than 1000 angstrom or 100 nanometer. So this is the basic difference between true solution, colloidal solution and suspension. What? That the size of the particles of dispersed phase is less than 10 angstrom in case of true solution. It is less than 1000 angstrom but greater than 10 angstrom in colloidal solution. So 10 to 1000 angstrom in colloidal solution and greater than 1000 angstrom or greater than 100 nanometer in suspension. So this is the basic difference between these three type of mixtures. Now there are so many other differences like true solution. True solution is a homogeneous mixture while colloidal solution and suspension are heterogeneous mixture. तो ये difference ध्यान में रखिए. पहला तो particle size से, the second is जो इसका क्या है, नेचर है, जो उसकी यूनिफॉर्मिटी है. तो ट्रू सॉल्यूशन तो यूनिफॉर्म होता है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है. वाइल कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ये क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस होते हैं. उसके अलावा बिकॉज यू कैन सी दैट पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल, सो इट मीन्स द पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज और द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज आर इनविजिबल इन ट्रू सॉल्यूशन, आप देख ही नहीं सकते हो. While in case of colloidal solution, you can see the particles with the help of electron microscope. Microscope की हेल्प से आप colloidal solution के particles को देख सकते हो, मतलब dispersed phase के particles colloidal solution में देख सकते हो. But in case of suspension,
you can see the particles even with naked eyes. तो सस्पेंशन में आप बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प के भी आप जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल्स को देख सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है. द नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट देयर अपीयरेंस. सो ट्रू सॉल्यूशन आर जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं ट्रू सॉल्यूशन जनरली. तो आप इसके आर पार इजीली देख सकते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं. नाउ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर ऑल्सो जनरली ट्रांसपेरेंट, समटाइम्स दे मे बी अ लिटिल ट्रांसल्यूशेंट, बट सस्पेंशन आर ओपेक. सस्पेंशन ओपेक होते हैं, इसके क्रॉस आप इसके आर पार आप नहीं देख सकते हो. तो ये मेन डिफरेंस हो गए बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज classification of colloidal solutions or classification of colloidal systems. So as you know, there are two type of substances which are present. One is called dispersed phase and another is called dispersion medium. तो dispersed phase क्या होता है, जिसको आप disperse करते हो किसी substance में, और dispersion medium क्या होता है, dispersion medium वो medium होता है जिसमें आप dispersed phase को disperse करते हो. So there are two substances. Now, dispersed phase and dispersion medium on the basis of, because there are so many classifications. So first is on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. So on the basis of dispersed phase and dispersion medium's physical state, there are 8 types of classification: solid solid, solid liquid, solid gas, then liquid solid, liquid liquid and liquid gas, then gas solid and gas liquid. तो ये 8 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस आपके हो गए. गैस गैस नहीं होगा, क्योंकि गैस गैस जनरली क्या फॉर्म करता है, दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि वो क्या फॉर्म करता है, इट विल फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, और वो एक ट्रू सॉल्यूशन जनरली फॉर्म करता है. तो इसीलिए गैस गैस नहीं होते हमारे पास. नाउ द नेम ऑफ सॉलिड सॉलिड, मतलब जिसमें डिस्पर्स फेज भी एंड डिस्पर्जन मीडियम भी दोनों सॉलिड हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल. उसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल. नाम आपको ध्यान में रखना है. एंड इट्स एग्जाम्पल्स आर जेम्स, रूबी ग्लास, कलर्ड ग्लास, दीज ऑल आर सॉलिड सॉल्स. इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स ही सॉलिड में डिस्पर्स्ड होते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड एंड दीज आर कॉल्ड सॉल्ट्स. Now salts, examples of salts are muddy water, gold salt, paint, ink. These all are the examples of salts. So paints and inks are the important examples of salts. उसमें क्या होता है, solids are dispersed in liquid. solid के छोटे छोटे particles liquid में disperse होंगे. Then the third point is solid dispersed in gas. तो जब solid dispersed in gas है तो that is called aerosol or aerosol of solids. These are also called aerosol of solids. तो aerosol of solids are the substances in which solids are dispersed in gases. तो example smoke, dust, all these are aerosols of solids. तो इसमें क्या होता है, solid particles, dust particles या फिर smoke के छोटे छोटे particles, they are dispersed in गैसेस, दैट इज दे आर डिस्पर्स इन एयर. तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो उस गैस में क्या डिस्पर्स हो रखा है, स्मोक या डस्ट डिस्पर्स हो रखा है. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एरोजॉल. द नेक्स्ट इज लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड. नाउ व्हेन द लिक्विड्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड्स सॉलिड में डिस्पर्स्ड इन, दीज आर कॉल्ड जेल्स. इनको हम कहते हैं जेल्स. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ जेल्स आर चीज. चीज इज एन एग्जांपल ऑफ जेल. बटर इज एन एग्जांपल ऑफ जेल. जेलीज, यू हैव सीन सो मेनी जेलीज. These jellies are the example of gels. Now the next is liquid dispersed in liquid. So when liquids are dispersed in liquid, these are called emulsions, and examples of emulsions are milk. Milk is an emulsion. Then medicines, the liquid medicines, these are also the examples of emulsions. Now the next one is liquid dispersed in gas. So liquid dispersed in gas are called aerosols of liquids. These are called aerosols of liquids. तो हमारे पास दो तरीके के हो गए, aerosols of solids and aerosols of liquids. Now the aerosols of liquids are fog, mist, clouds. तो इनमें क्या होता है, जो लिक्विड है वो डिस्पर्स है गैस में. आपकी एयर है, एयर में आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी वो डिस्पर्स हो जाती हैं, तो ये फॉग, मिस्ट या क्लाउड्स फॉर्म करते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिस्पर्स इन गैस और एरोसॉल्स ऑफ लिक्विड्स. The next is gases dispersed in solid. तो gases dispersed in solid, they are called solid foam. For example, pumic stone,
स्टायरीन फोम, तो इसमें क्या होता है, सॉलिड में गैसेस डिस्पर्स हो जाती हैं, तो इस तरीके के वो सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज गैसेस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, तो अगर लिक्विड में गैसेस डिस्पर्स हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड फोम और फ्रोथ, उसको हम फ्रोथ बोलते हैं या फिर फोम बोलते हैं। तो फोम या फ्रोथ आपने देखा होगा जनरली जो झाग बनता है कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फोम या फिर फ्रोथ। तो फॉर एग्जांपल सूप लेदर जो होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, गैस के बबल्स होते हैं तो लिक्विड में वो डिस्पर्स हो जाते हैं, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोम। देन लेमोनेड फ्रोथ जो होता है, जनरली आप लेमोनेड फॉर्म करते हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर फ्रोथ बनता है, झाग बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो भी क्या है, एक फोम है या फ्रोथ है। एंड देन शेविंग फोम भी आपने देखा होगा, तो वो भी गैस डिस्पर्स इन लिक्विड का एक एग्जाम्पल है या फोम या फ्रोथ का एक एग्जाम्पल है। तो होप कि आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड dispersion medium. How do they interact with each other? So either they will interact, they will attract each other very easily, or they won't attract each other. So on this basis there are two types of colloidal solution. One is called lyophilic salts and other is called lyophobic salts. So there are two terms, lyophilic. Lyo stand for liquid and philic, that is loving. So the salts in which the disperse phase and dispersion medium can mix with each other very easily or can attract each other very easily, such salts or such colloidal solutions are called lyophilic salts. For example, gum is an example of lyophilic salt, or starch is an example of lyophilic salt. Now lyophobic salts are opposite to that of lyophilic, that is in which the particles of dispersed phase do not interact with the particles of dispersion medium, so they won't interact with the particles of dispersion medium, so it is very difficult to form a lyophobic salts. So such salts are called lyophobic. Lyo stands for liquid, phobic that is afraid of or hating, so it is afraid of liquid. So therefore the interaction between dispersed phase and dispersion medium will be very difficult in case of lyophobic salts. So for example, gold sol or platinum sol, these are the examples of lyophobic salts. तो आपको ध्यान में रखना है कि लायोफिलिक सॉल्ट्स में बहुत इजीली इंटरेक्शन होता है बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो उनके पार्टिकल्स इजीली मिक्स हो जाते हैं और बहुत इजीली लायोफिलिक सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है। एंड इन केस ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं इजीली, तो इसकी वजह से ये इजीली प्रिपेयर नहीं हो पाता है। जैसे गोल्ड सॉल या प्लेटिनम सॉल, ये सब एग्जांपल हो गए लायोफोबिक सॉल्ट्स के। अब और क्या क्या डिफरेंस होते हैं? सबसे पहले तो इजी टू प्रिपेयर, द लायोफिलिक सॉल्ट इट इज़ इजी टू प्रिपेयर वाइल लायोफोबिक सॉल्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तो लायोफिलिक सॉल्ट आपको पता है जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट disperse phase and dispersion medium, they will interact with each other very easily, तो बहुत easily interact करेंगे तो हम इसको physical process से easily prepare कर सकते हैं। While the lyophobic salts cannot be prepared with the help of physical method just by mixing, for that you have to use different ways, another methods, chemical methods आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो लायोफोबिक सॉल्ट को आप फिजिकल मेथड से, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मिक्स कर दे, क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ, तो इसको आपको केमिकल मेथड के से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर डिफरेंस दैट इट इज़ रिवर्सिबल वाइल इट इज़ इरिवर्सिबल, मतलब इसको आप इजीली फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को, वाइल लायोफोबिक सॉल्ट्स में आपने एक बार सेपरेट कर लिया अगर किसको, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को, अगेन यू विल नॉट प्रिपेयर इट
जस्ट बाय मिक्सिंग। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अलग कर दिया तो फिर मिक्स करके आप फिर से दोनों को मिक्स करके एक सॉल्ट बना दो, वो तब तक नहीं बनेगा जब तक फिर से आप उसको केमिकल प्रोसेस से ना बनाओ। जबकि लायोफिलिक सॉल्ट को आप इजीली पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज सेपरेट कर सकते हो डिस्पर्जन मीडियम से, और फिर से आप अगर उसको मिक्स करोगे और शेक करोगे तो वो तुरंत ही वापस फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए दिस इज रिवर्सिबल वाइल इट इज इरिवर्सिबल। द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। तो एज यू नो कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दे मिक्स विद ईच अदर, तो ये दे आर क्वाइट स्टेबल इन केस ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। तो लायोफिलिक सॉल्ट्स बहुत ही स्टेबल होंगे, बट लायोफोबिक सॉल्ट्स are not that stable. Lyophobic salts are less stable as compared to lyophilic salts. So these are the points to remember. So this was the classification on the basis of interaction between the particles of disperse phase and dispersion medium. Now we will discuss the classification on the basis of type of particles of disperse phase. So on the basis of types of dispersed phase, there are three types of colloidal solutions. The first is macromolecular colloids, then so on the basis of types of particles of dispersed phase, there are three types of colloids, that is macromolecular, multimolecular, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो यहाँ पे हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स, मतलब डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होते हैं। तो तीन क्लासिफिकेशन है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पार्टिकल्स चाहिए डिस्पर्स फेज के, वो कोलॉइडल रेंज में होने चाहिए। कोलॉइडल रेंज, एज यू नो द कोलॉइडल रेंज दैट इज अबाउट 10 raised to power -9 to 10 raised to power -7 meter, or you can say that is 10 angstrom to 1000 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो ये आपको पता है, दिस इज द रेंज। जो पार्टिकल साइज होना चाहिए वो इस रेंज में होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज इससे ज़्यादा बड़े हैं, पार्टिकल्स का साइज अगर इससे ज़्यादा बड़ा है, इट विल बी अ सस्पेंशन, और अगर पार्टिकल्स का साइज इससे छोटा है तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो साइज होगा वो ये होगा, इस रेंज में होगा। अब इस रेंज में सारे पार्टिकल्स का साइज तो हो नहीं सकता है, तो किस तरीके से पार्टिकल्स इस साइज में आते हैं, उसी से हमने इन तीन क्लासिफिकेशंस को समझना है। द फर्स्ट वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते क्या हैं? As the name suggests, multimolecular. So in these colloids, because the atoms or molecules of disperse phase are very small in size, so they have the size smaller than that of colloidal range. To come in this range, there are so many particles, so many atoms or so many molecules will combine, and the size of those particles will be in the colloidal range. तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, नाम ही है उसका मल्टी मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे एटम्स किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में किसके, डिस्पर्स फेज के कंबाइन होते हैं और वो एक पार्टिकल फॉर्म करते हैं। तो एक जो पार्टिकल होगा, द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, वो एक मॉलिक्यूल से नहीं बनेगा, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा या बहुत सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और जब एटम्स, क्योंकि वो एटम से मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, तो वो कोलॉइडल रेंज से भी छोटे होते हैं, उनका जो साइज होता है वो कोलॉइडल रेंज से वो छोटा होता है। तो कोलॉइडल रेंज में आने के लिए वो क्या करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे और तब तक कंबाइन होते रहेंगे जब तक वो इस रेंज में नहीं आते हैं। तो इस रेंज में आने के बाद वो क्या बन जाएंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स हो जाएंगे और इजीली आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। सो द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, macro stands for large. Macromolecular colloids means the colloids in which
द मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लार्ज साइज। तो जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका साइज ही इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद ही एक ही मॉलिक्यूल कोलाइडल रेंज में आ जाता है। तो यहाँ पे कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, बिकॉज अ सिंगल मॉलिक्यूल इज़ ऑफ कोलाइडल रेंज। एक ही मॉलिक्यूल उसका कोलाइडल रेंज में होता है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देन थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो पहले एसोसिएटेड कोलाइड्स से पहले आपको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स समझने होंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, सल्फर विल फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। सिमिलरली मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, तो मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। सो यू हैव टू रिमेंबर इट कि बहुत सारे जो कोलाइड्स होते हैं, ओके, बहुत सारे पॉलीमर्स मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स फॉर्म करते हैं, बिकॉज the size of the molecules of the polymers are generally very large, so therefore they can form the macromolecular colloids. Now the third and very interesting is associated colloids. तो associated colloids होते क्या हैं? Associated colloids are quite different from multimolecular and macromolecular colloids. So in general, in low concentration of disperse phase, in low concentration, these colloids behave as true solution. But as the concentration increases, the particles of disperse phase combine and form aggregate of colloidal range. So such colloids are called associated colloids. तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एसोसिएटेड कोलाइड्स होते क्या हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स कुछ ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिनमें जो लो कंसंट्रेशन अगर होता है, तो लो कंसंट्रेशन में तो सॉल्यूशंस की तरह ही बिहेव करते हैं, तब वो कोलाइड्स की तरह बिहेव करेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर दे विल बिहेव लाइक कोलाइड्स। तो अगर उससे नीचे आपका कंसंट्रेशन है तो वो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, और कंसंट्रेशन उससे ऊपर आ जाता है तो वो करेंगे किसकी तरह बिहेव, कोलाइड्स की तरह बिहेव। सो द मिनिमम कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एसोसिएटेड कोलाइड इज नोन एज critical micelle concentration. That is called critical micelle concentration. तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम है तो वो तो बिहेव नहीं करेंगे एसोसिएटेड कोलाइड की तरह, और उससे ऊपर है तो दे विल बिहेव लाइक एसोसिएटेड colloids. Now, what is the meaning of this word micelle? The micelle is the association. तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर इनका कंसंट्रेशन हो जाता है तो जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, वो कंबाइन होंगे और एक एग्रीगेट फॉर्म करेंगे, एंड दिस एग्रीगेशन और दिस एग्रीगेट इज कॉल्ड मिसेल. दिस प्रोसेस इज नोन एज मिसेल फॉर्मेशन. तो आपको मिसेल का मतलब पता चल गया होगा. मिसेल क्या है? एग्रीगेट है. किसका? उन मॉलिक्यूल्स का या उन आयंस का जो फॉर्म करते हैं एक कोलॉइडल पार्टिकल. तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन above which any substance will behave like a colloid. The next is temperature. So the temperature above which the substance will behave like a colloidal solution, that is known as Kraft temperature. उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर से ऊपर, अगर इससे टेम्परेचर अगर ऊपर होगा तो ही वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, उसको हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. और अगर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन है जिससे ऊपर वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो कोलॉइड की तरह बिहेव नहीं करेगा. नाउ वी विल सी how the associated colloids are formed or how the micelles are formed. So we will see an example of soap. In soap there is a formation of colloids. So what happens in case of soap? Soaps are generally sodium or potassium salts of higher fatty acids. For example, C17H35COONA. C17H35COONA, this is the formula of sodium stearate. So it is a soap. Now every soap has two parts. One is a long hydrocarbon chain. So this is called tail,
and a COONA part that is called head. तो जब भी C17H35 COONA को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये फॉर्म करेगा C17H35 COO- आयन प्लस Na प्लस आयन। अब क्या होता है कि इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक बहुत लंबी चेन होती है, दैट इज द हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन चेन एक हाइड्रोफोबिक चेन होती है। दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाइल द एंड, इसको हम कहते हैं COO वाला जो पार्ट है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दिस हाइड्रोफोबिक पार्ट इज कॉल्ड टेल, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड। अब इसको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वाला पार्ट है हाइड्रोकार्बन चेन, इट इज रिपेल्ड बाय वाटर, ये वाटर को जनरली रिपेल करता है। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो हाइड्रोफिलिक नाम सजेस्ट कर रहा है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि ये वाटर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब ये वाटर को अट्रैक्ट क्यों करता है? तो आपको जैसे कि दिख रहा है, ये जो वाला पार्ट है दिस इज पोलर पार्ट और ये नॉन पोलर पार्ट होगा। तो आपको पता है पोलर पार्ट जो होगा वो क्या करेगा? वाटर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसमें आयन है। तो आयनिक जो वाला पार्ट होगा वो अट्रैक्ट करेगा, जबकि उसकी जो टेल होगी वो रिपेल करेगी। तो जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, सो दे विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट दीज हाइड्रोफिलिक हेड्स आर turned towards the water because they are attracted by water, while the hydrophobic part is repelled by water. So they will arrange themselves in this way. This is the way of arrangement. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर से अट्रैक्ट होता है। सो दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, ये टेल जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो वाटर से दूर भागता है। तो वो अंदर की तरफ जाएगा तो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये वाला पार्ट जो है वाटर से बचना चाहता है, जबकि ये हेड वाला जो पार्ट है वो वाटर की तरफ जाना चाहता है। तो अगर वाटर में सोप आपने डिसॉल्व किया है तो वाटर में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगा, ताकि उसको वाटर के कांटेक्ट में ना आना पड़े। तो अपने आप को इस तरीके से वो अरेंज कर देते हैं। नाउ आपको पता है Na प्लस एंड सो ऑन। तो दिस एसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड मिसेल। इसी को हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। एंड दिस फिनोमिनन, दिस इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशन। तो दिस इज हाउ द एसोसिएटेड कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड और दिस इज हाउ द मिसेल्स आर फॉर्म्ड। Now, with the help of micelle formation, we can understand how the soaps are used to clean the cloths. So that is known as cleansing action of soap. That is known as cleansing action of soap. So this is very easy to understand. तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में हम ये समझते हैं कि सोप किसी भी सब्सटेंस को क्लीन करेगा कैसे। तो जैसे कि आपको पता है कि सोप में क्या होता है? सोप में मिसेल्स फॉर्म होते हैं। दीज आर द मिसेल्स। नाउ द डर्ट विच इज टू बी रिमूव्ड, द डर्ट पार्टिकल्स आर जनरली ऑफ ऑयल्स और ग्रीसेस। तो आपको पता है कि वो ऑयल्स या ग्रीसेस के पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो ऑयल्स होते हैं जनरली जो आपके क्लॉथ्स पे या बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको आप सोप की हेल्प से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई डर्ट पार्टिकल है, दैट इज द पार्टिकल ऑफ ऑयल। दिस इज ऑयल ड्रॉपलेट, जिसके ऊपर डस्ट या डर्ट डिपॉजिट हो जाती है। तो अब क्या होता है? दिस इज द ऑयल ड्रॉपलेट। अब इस ऑयल ड्रॉपलेट को हमको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ सोप। तो होता क्या है? वेन एवर द सोप्स आर अप्लाइड ऑन द क्लॉथ्स, तो क्या होता है? बिकॉज दिस ऑयल ड्रॉप इज अ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, तो ये हाइड्रोफोबिक है तो वाटर के साथ तो मिक्स होगा नहीं इजीली। ऑल्सो जो ये इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, तो जो हाइड्रोफोबिक टेल होगी वो तो इसके साथ इजीली मिक्स हो जाएगी,
जबकि जो हाइड्रोफोबिक हेड होगा वो इसके साथ इजीली मिक्स नहीं होगा। तो जो सोप होगा वो इस पे मिसल कुछ इस तरीके से फॉर्म कर देगा। नाउ दिस इज योर ऑयल ड्रॉप और दिस इज हाउ इट विल बी डिपोजिटेड ऑन द ऑयल ड्रॉप। तो सोप इस तरीके से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है उसमें क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। विच पार्ट? द हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। तो इससे क्या होगा, हेड जो है इसका वो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से जब आप इसको पहले सोप अप्लाई करते हो उसके बाद आप क्या करते हो, वाटर से इसको वॉश करते हो। जैसे ही आपने इस पे वाटर अप्लाई किया, व्हेनेवर यू अप्लाई द वाटर, तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द वाटर, सो इट विल गो अवे विद वाटर। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ जाएगा। नाउ द हाइड्रोफोबिक टेल इज अटैच्ड टू द ऑयल ड्रॉप। जो आपका डर्ट की जो ड्रॉप है, जो ऑयल ड्रॉप्स जो भी आपके क्लॉथ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके साथ अटैच हो गई कौन? हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इसके साथ अटैच हो गई, लेकिन हाइड्रोफिलिक हेड तो वाटर के साथ चला गया। तो अब हाइड्रोफोबिक टेल तो इसको छोड़ेगी नहीं और हेड वाटर को छोड़ेगा नहीं। तो क्या सीन बनता है यहाँ पे कि जो ऑयल ड्रॉप होगी, ऑयल ड्रॉप भी उसी के साथ चली जाएगी। किसके साथ? टेल के साथ, क्योंकि जो हेड है वो वाटर के साथ जाएगा तो टेल तो हेड के साथ जाएगी। और टेल अटैच हो रखी है किससे? ऑयल ड्रॉप से। तो ऑयल ड्रॉप को भी छोड़ के, जो क्लॉथ है उसको छोड़ के किसके साथ जाना पड़ेगा? वाटर के साथ। तो इसीलिए इट इज washed away with the water. Whenever water is applied, the oil drops are washed away with the water. So this is how cloths are cleaned with the help of soap. So this is all in today's lecture. If you have any doubt in any topic, please ask the questions in the comment box. Thank you very much.